Good morning, dear students. Dear students, today we are going to cover your last chapter, that is structure of atoms. ठीक है. Now structure of atom में first of all you know that matter is made up of very small particle that is called atom. आपने previous chapter में पढ़ा. Now in this chapter we will discuss the limitations of the Dalton atomic theory. तो Dalton atomic theory ने क्या बोला था बेटा कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन नेचर है. बट इन दिस चैप्टर वी डिस्कस दैट कि जो एटम होता है बेसिकली उसमें सब अटॉमिक पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. So let us discuss the how the electron, proton and neutron were discovered. So first of all we discuss the discovery of electron. तो बेटा इलेक्ट्रॉन बेसिकली आर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, ठीक है, एंड कैरी नेगेटिव -1 यूनिट चार्ज, ठीक है. एंड एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 1850 गुना एक तरह से अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम्स कम होता है हाइड्रोजन एटम से, ठीक है. सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज. सो इसके लिए एक फेमस एक्सपेरिमेंट है बाय जोसेफ जोन्स जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट. जे थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, experiment. And this experiment also called cathode ray experiment. This experiment is also called cathode rays experiment. सो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बेटा क्या होता है? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में बेसिकली गोल्ड जे थॉमसन सिलेक्टेड डिस्चार्ज ट्यूब. उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है, मेड अप ऑफ ग्लास एंड पुट टू इलेक्ट्रोड उसमें डाले एंड कनेक्टेड दीज टू इलेक्ट्रोड्स विद सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एंड filled this discharge tube with certain inert gases like helium या neon, ठीक है. Now when beta under the when high temperature and very low pressure, ठीक है, a discharge electricity is passed through this discharge tube, ठीक है. So there is a evolution of there is a inflorescence. एक तरह से यहाँ पर क्या होती है, फ्लोरेसेंस इंक्लूड होती है एंड a ray traveling from cathode towards the anode. These ray called cathode rays. इनको क्या बोला बेटा? कैथोड रेज. तो कैथोड रेज बेसिकली कैथोड रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द कैथोड टुवर्ड्स द एनोड, अंडरस्टैंड. एंड कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज रेज. कैसी है बेटा ये? नेगेटिवली चार्ज्ड रेज. These are negatively charged rays traveling from cathode towards the anode. Now properties of cathode rays. सबसे पहले बेटा ये स्ट्रेट लाइन में चलती है, ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन. दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है these cathode rays deflected by electric and magnetic field. If we place magnet north pole, south pole, then these rays deflected by electric and magnetic field, understand. And when we apply electric field around the discharge tube, then this cathode rays also deflected towards the electrode. So these are the properties of cathode rays, ठीक है. And these rays was discovered by the J.J. Thomson. So the discovery of electron from this experiment, that is cathode ray experiment. Next है बेटा discovery of proton. Discovery of proton basically
1897, ठीक है, 1897 में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुई थी। नो, इसके लिए भी बेटा गोल्ड ये की थी ई गोल्डस्टीन ने, ई गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन ने। तो बेसिकली इसमें भी डिस्चार्ज ट्यूब है, बट इसमें एक परफोरेशन है। तो जो एक डिस्चार्ज ट्यूब सेम डिस्चार्ज ट्यूब होगी, ठीक है, बट यहाँ पर कैथोड एज यूजुअल, ठीक है, यहाँ पर एनोड, अंडरस्टैंड, इसको आप बोलेंगे कैथोड, एनोड, ठीक है। नो, एनोड रेज क्या होंगी बेटा, यहाँ पर एक परफोरेशन होगी, ठीक है, परफोरेशन। आपको पता है कैथोड रेज इस तरफ से इस तरफ को ट्रैवल करती है, ठीक है, लेकिन जो एनोड रेज होती हैं, बेसिकली एनोड रेज बेसिकली अराइज फ्रॉम द परफोरेशन ऑफ द कैथोड। ये परफोरेटेड कैथोड है, towards the these rays originate from the perforated cathode towards the anode. So that's why these rays also called beta canal rays, because when these rays, ठीक है, seen from the outside, these rays looks like the stream of water. So that's why these rays also called the canal rays. इनको canal rays भी बोलते हैं, canal rays, because these rays looks like the stream of water, understand. So E Goldstein discovered the cathode rays, ठीक है, and cathode इसके ऊपर सॉरी डिस्कवर्ड द प्रोटॉन, ठीक है। सो दी कैनाल रेज या इनको बोलते हैं आप एनोड रेज, ठीक है, इनको एनोड रेज भी बोला जाता है, एनोड रेज। So these rays originated from perforated cathode toward the cathode. So that's why these rays are called anode rays, ठीक है, क्योंकि इनकी जो मूवमेंट होती है वो ऑपोजिट होती है देन दैट ऑफ द कैथोड रेज, अंडरस्टैंड और नॉट। सो नेक्स्ट है बेटा, these rays also called the perforated canal rays, because these rays looks like the perforation of the these looks like the stream of water that are flowing in the river, तो उसकी जैसी दिखती हैं। सो दैट्स व्हाई दीज रेज आल्सो कॉल्ड कैनाल रेज। नेक्स्ट है बेटा जेम्स चैडविक, ठीक है, जेम्स चैडविक ने डिस्कवरी की थी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। नो डियर स्टूडेंट्स, हम करेंगे बेटा जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। सबसे पहले हम करेंगे जे थॉमसन प्लम पटिंग मॉडल्स, ठीक है। सो बेटा जे थॉमसन का मॉडल ऑफ एन एटम में सबसे पहले हम करेंगे मॉडल ऑफ एन एटम। सबसे पहले हम करेंगे जे थॉमसन प्लम पटिंग मॉडल, सेकेंड नंबर पर बेटा आएगा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। थर्ड नंबर पर बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। So these are the three models of an atom, ठीक है, we will discuss in this chapter, ठीक है। तो बेटा बेसिकली जो जे थॉमसन प्लम पटिंग मॉडल है, इसको क्रिसमस ट्री के साथ भी, ठीक है, क्रिसमस ट्री के साथ भी कंपेयर किया गया है। तो बेसिकली जो जे थॉमसन प्लम पटिंग मॉडल है उसमें क्या होता है बेटा, ठीक है, जैसे इसको वाटरमेलन के साथ भी कंपेयर किया गया, इसको क्रिसमस ट्री के साथ भी कंपेयर किया गया, ठीक है। सो इसमें क्या होता है बेटा,
ठीक है। सो दिस मॉडल इज कॉल्ड प्लम पडिंग मॉडल। जो इसमें सीड्स होते हैं दैट आर कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज। जैसे आप बेटा इसको देखते हैं, वाटरमेलन को देखते हैं, तो उसमें जो सीड्स होते हैं दैट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से, ठीक है। और बाकी का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दैट दैट मॉडल इज कॉल्ड जे थॉमसन प्लम पडिंग मॉडल, ठीक है। ये क्रिसमस ट्री के जैसे इसको कंपेयर किया गया है कि जो उसमें ट्री होता है उसमें जो लाइट्स होते हैं दैट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स को। बट दिस मॉडल हैव मैनी लिमिटेशंस, ठीक है। दिस मॉडल कुडंट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, नॉट प्रैक्टिकली डिटरमाइंड। नेक्स्ट मॉडल आता है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। नो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम में बेटा, रदरफोर्ड बेसिकली इसको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। नाउ इन दिस मॉडल बेटा ही सेलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल, ठीक है। उसने एक ठीक है गोल्ड फॉइल ली, ठीक है। और गोल्ड फॉइल एक स्लिट होती थी, ठीक है, जो इन गोल्ड फॉइल पे इनको अल्फा, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स। तो ये बहुत सारे अल्फा पार्टिकल यहाँ से इमिट होते थे, अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट हैपन, ये जो गोल्ड फॉइल, ये जो स्लिट है, ये इनको कलेक्ट करती थी और एक अल्फा पार्टिकल आगे जाता था, ठीक है। एंड नाउ अब उसने जो गोल्ड फॉइल ली उसके ऊपर जो एटम थे, इसके ऊपर एटम थे बेटा, ठीक है, एटम्स थे इसके ऊपर। सो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे वो अनडिफ्लेक्टेड होके जाते थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है। एंड 1/1 लाख, ठीक है। कई बार एनसीईआरटी 10,000 है, 1/, अब ये होगा 1 लाख, 1 लाख अल्फा पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है, when it strike to the center of the nucleus of the atom, ठीक है। सो इट मीन्स दैट कि जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का वो वेरी स्मॉल पोर्शन में होता है। अगर अल्फा पार्टिकल बेटा, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं, नाउ इफ आई ड्रॉ द डायग्राम और अल्फा पार्टिकल्स में जो गोल्ड फॉइल है उसमें एटम की मैं स्ट्रक्चर बनाऊं इलेबोरेट करके, ये सेंट्रल पोजीशन है उसकी, ठीक है, इस तरह से। तो जो अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन इसमें होगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट ए स्मॉल एंगल, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड टू ए स्मॉल एंगल, अंडरस्टैंड। एंड 1/1 लाख अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में कोई 10,000 लिखो, उसको ठीक कर लेना, 1/10 लाख अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट 180 डिग्री। इट मीन्स दैट कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है वो एटम में एक स्मॉल पोर्शन में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड, इसको न्यूक्लियस बोला जाता है, न्यूक्लियस, ठीक है। एंड यू नो दैट कि जो न्यूक्लियस होता है वो वेरी स्मॉल पोर्शन में प्रेजेंट होता है किसी भी एटम में। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड कंक्लूड दैट न्यूक्लियस ऑफ द एटम present at the very small portion of the atom, rest of the space inside the atom remain empty, understand. So that's why very few alpha particles deflected at a small angle. लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है बेटा, लिमिटेशन क्या है कि when electron revolve around, if there is a when electron revolve around the nucleus और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी एक लिमिटेशन है। ये जो
इलेक्ट्रॉन, there is a strong electrostatic force of attraction between these. If this happen, क्या होगा बेटा, ये इनका फ्यूजन हो जाएगा एंड अल्टीमेटली यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि अगर दोनों में मान लो कि जैसे कोई चीज मान लो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, सो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज ऑर्बिट, अंडरस्टैंड, सो अल्टीमेटली इट लीड्स टू फ्यूजन, ठीक है, and at every step it lose energy and ultimately it fall into the nucleus. So that are the major limitation of the Rutherford atomic model, ठीक है। Rutherford couldn't explain the stability of the atom. It means that atom जो है unstable है at if electron revolve around the nucleus and there is a strong electrostatic force of attraction, then at each step it lose energy, ठीक है, and hence it ultimately fall into the nucleus and structure of the atom we could not explain the structure of atom. तो बेटा उसके बाद जो मॉडल आता है that is called Bohr's model of an atom, Bohr's model of an atom. So Bohr's model of an atom basically describe the structure of atom, ठीक है। उसने क्या बोला था बेटा, बोर्स मॉडल ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए डिस्क्रीट और द पैकेट्स ऑफ द एनर्जी, ठीक है, उनके बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस होता है, तो ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है एटम का, ये फर्स्ट सेल है, इसको के शेल बोला जाएगा, के शेल, एम शेल एंड एन शेल, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू नील्स बोहर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए डिस्क्रीट एनर्जी, एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल होता है उसका, ये नहीं होता कि वो कंटिन्यूसली इस तरह से मूव करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, नो। उसने बोला था कि नील्स बोहर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए fixed orbit, in a fixed orbit. So that's why this model is more appreciable and more accurate than the Rutherford atomic models. So kindly note down these diagrams, important diagrams. बेटा इसके बाद आप करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, सॉरी ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। मैं आपको बनाना बता देता हूँ, आपकी एनसीईआरटी बुक में देयर आर टेबल गिवन जिसमें ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ सम फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की गिवन है। फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन की आपको बताता हूँ, हाइड्रोजन, ठीक है, के सेल, अब फॉर्मूला इसके लिए होगा 2n², वेयर n इज द नंबर ऑफ पेयर, n इज नंबर ऑफ शेल, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैसे कैलकुलेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2n² से। फॉर एग्जांपल इफ n की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर तो कितनी आ जाएगी बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो के एल एम एन, तो अगर आप 2n² लगाएंगे इसके ऊपर तो इसमें आएंगे 2, इसमें एल में एल शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके, ठीक है, 2n², तो ये 2 2 दैट इज 8, समझ आई बात आपको, ठीक है। फिर m शेल में आप कैलकुलेट करेंगे m2 3 का स्क्वायर दैट इज 9 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो दैट आर द मेन हाउ वी कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए शेल। तो इसमें 2 आएंगे, इसमें 8 आएंगे, इसमें 18 आएंगे, n में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, n के लिए n की वैल्यू कितनी होगी बेटा 4, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 3, इसके लिए n की वैल्यू 2 एंड इसके लिए n की वैल्यू
स्क्वायर, तो ये बन गया बेटा 32 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें आएंगे 32। ठीक है, सो इससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन की ऑर्बिटल पिक्चर कैसे आएगी बेटा, हाइड्रोजन 1 एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो इसकी ऑर्बिटल पिक्चर इस तरह से आएगी। हाइड्रोजन, हीलियम एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, ठीक है, तो इसकी ऑर्बिटल पिक्चर लाइक दिस। तो ये के शेल है, पहली के शेल है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको लिथियम की बताता हूँ। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेगा तो वो 1 आती है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी ऑर्बिटल पिक्चर बनेगी, फर्स्ट शेल और ये, ठीक है। तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की आपने ट्राई करनी है। मैं आपको 3 की मैंने सिखा दी, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते चलो, इस तरह से आप फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। 2n स्क्वायर नंबर को आपने याद रखना है, अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट है बेटा फर्स्ट 20 एलिमेंट्स मैं आपको सामने लिख देता हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, ये फर्स्ट 20 एलिमेंट है। इनकी ऑर्बिटल पिक्चर आपने बनानी है, अंडरस्टैंड। तो इनकी आपको सिंबल एज वेल एज इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल पिक्चर आनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेटा आता है आइसोटोप। क्या होते हैं आइसोटोप्स? आइसोबार्स, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है, मास नंबर को ए से, और सिंबल ऑफ द एलिमेंट को एक्स से डिनोट किया। किसी भी एलिमेंट का सिंबल इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पर जेड और यहाँ पर ए आता है, अंडरस्टैंड। सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस which are always equal to the number of electrons, ठीक है। समझ आई बात बेटा आपको? तो ऑलवेज किसी भी एलिमेंट का नंबर जो एटॉमिक नंबर होगा नंबर ऑफ द प्रोटॉन के बराबर होगा जो न्यूक्लियस में होते हैं, एंड मास नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, in the nucleus of an atom, that is called mass number। एंड किसी भी एलिमेंट का सिंबल इस तरह से लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम हीलियम की बात करें तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन आ सकते हैं, तो न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करने का 4 - 2 2 न्यूट्रॉन है इसमें, अंडरस्टैंड। क्योंकि जो मास नंबर है माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स। तो किसी भी एलिमेंट का आपको कैलकुलेट करने के लिए वो दे सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट के 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप होते हैं बेटा सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन 11, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 13, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, और इसको ट्रिटियम भी बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको प्लूटोनियम बोलते हैं, ठीक है। एंड इसी तरह क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो जो एवरेज एटॉमिक मास आता है इसका दैट इज क्लोरीन 35.5, क्योंकि ये 3:1 में होते हैं, ये 3:1 में होते हैं। अगर ये 75% है तो ये 25% होगा, ठीक है। दैट आर दी फ्यू आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन, क्लोरीन, ठीक है। तो इसी तरह से बेटा आइसोबार होते हैं इससे अपोजिट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास,
फॉर एग्जांपल कैल्शियम एंड आर्गन। तो बेटा अब आइसोटोप की एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। तो सबसे पहले आयोडीन का एक आइसोटोप है आयोडीन 126, आयोडीन 126, ठीक है, यूज्ड टू क्योर ग्वाइटर डिजीज। ग्वाइटर डिजीज को क्योर करने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह से, ठीक है, कोबाल्ट 60 आइसोटोप यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए यूज किया जाता है कोबाल्ट 60, ठीक है। इसी तरह से फास्फोरस 31 यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स। ठीक है, दैट आर दी फ्यू एप्लीकेशन ऑफ दी आइसोटोप्स। जो आयोडीन है वो ग्वाइटर कोबाल्ट 60 यूज्ड इन द कैंसर और फास्फोरस 31 यूज्ड इन दी फर्टिलाइजर्स के लिए, क्योंकि आपको पता है एनपीके फर्टिलाइजर्स होते हैं वहां पर फास्फोरस का यूज होता है, ठीक है। सो दैट आर द फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ द आइसोटोप्स एंड that is the end of this chapter student. I hope you understand this chapter very well. मैंने सबसे पहले आपको बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस द टर्म कैथोड रेज, एनोड रेज, देन जे थॉमसन प्लम पडी मॉडल, देन रदरफोर्ड models of an atom, Bohr's model of an atom, and after that orbital picture of first 20 elements, and then isotope and isobar. I hope you अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट। एक और आइसोटोप होता है बेटा, उसको भी यूरेनियम 292 यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज होता है यूरेनियम 292, ठीक है। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। मैंने आपके इसमें आई सेंड वेरियस टाइप ऑफ इम्पोर्टेंट नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, काइंडली उनकी प्रिंट आउट लीजिए और उनको अच्छे से रीड कीजिए, and then also solve the NCERT solution on your fair. Thank you students.